Good day to all. Welcome back. In this class, we are going to discuss our class 10 subject English footprint, chapter 8, the hack driver, which we have already read in some other classes. Before going to the revision of the question, I would like to summarize the lesson one more time to keep you on the track. What to think in the mind. So let us come to recapitulate the whole lesson within some points. The hack driver. In your easy language, you can say Tonga driver, which you can see on the railway stations. Actually, in present time, they are about to extinct from our society. But in olden days, it was in good practice. So this is the story of a liar who is a newly appointed in a firm. One day he is sent to a village to hand over a summon to a person who is needed in a court case. So the narrator goes to New Mullion. Narrator is the lawyer itself. The narrator states that he passed his education with honors. Then he became a junior assistant clerk in a good law firm. He was sent to serve summons. Summons, court orders. Some beat him up. In some places, he got beating, as it was not a job which all liked it. Some beat him up. He had to go to dirty places to serve summons on people. He thought to run home as he hated this job. Means because of this unpleasant work, he was not ready to establish himself in that service. So always he had a desire to leave that place, to leave that service. But he continued working. It was an unpleasant training period. आपने देखा एक कथाकार यह बताता है कि उसने अपनी स्नातक की परीक्षा ऑनर्स से उत्तीर्ण की। फिर वह एक अच्छी कानूनी फर्म में एक सहायक क्लर्क बन गया। उसका काम था लोगों को सम्मन बांटना। इस काम के लिए वो हर जगह भेजा जाता था। कई बार उसे कुछ लोगों के द्वारा पिटाई भी खानी पड़ती थी। सम्मन देने के लिए उसे न चाहते हुए भी कुछ गंदे स्थानों पर भी जाना पड़ता था। कई बार उसने वह नौकरी छोड़कर घर भागने की भी सोची, क्योंकि वह इस तरह के कामों से घृणा करता था। फिर भी उसने काम जारी रखा। यह काम एक अरुचिकर था, लेकिन वो ट्रेनिंग को पूरा करना चाहता था। One day he was sent to New Mullion. It was a town 40 miles in the countryside from his farm.
He had to serve someone on Mr. Lutkins, who was needed in some court case. He reached New Mullion by the train. It had muddy street. He met the delivery man at the station. Who was the delivery man? The hack driver. The delivery man was about 40. He had a red face and looked cheerful. He had a dirty dress but had a friendly manner. जब वो न्यू मुलियन शहर कस्बे के पास पहुंचा तो स्टेशन के बाहर उसे एक डिलीवरी मैन दिखाई दिया, एक हैक ड्राइवर दिखाई दिया, जो कपड़ों से तो भद्र नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। चेहरा गोरा था। The narrator told him that he wanted to find a man named Oliver Lutkins. वकील ने उससे कहा कि वह एक ऐसी आदमी की तलाश में है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिन। He replied to the narrator that he had seen Lutkin about an hour ago. उस हैक ड्राइवर ने यह कहा कि अभी तो 1 घंटे पहले ही उसने लुटकिन को देखा है। The narrator told him that he wanted to see him at any cost. नरेटर ने अपनी ज़रूरत बताई कि वो उसे किसी कीमत पर मिलना चाहता है। The man told the narrator that he had a hack. उस आदमी ने बताया कि मेरे पास एक तांगा है। He also told him that he knew most of the places where they could find Oliver Lutkins. उसने ये भी बताया कि उसे तमाम सारे ऐसे जगह पते हैं जहाँ पर ओलिवर लुटकिंस को आसानी से खोजा जा सकता है। इस तरह से ओलिवर लुटकिन की खोज शुरू हुई। द नरेटर फाउंड द मैन टू बी ओपन एंड फ्रेंडली। बातचीत के दौरान वकील को वह व्यक्ति जो उसे ओलिवर लुटकिन के पास ले जा रहा था काफ़ी पसंदीदा और मित्रवत व्यवहार वाला महसूस हुआ। ही हैड जेन्युइन काइंडनेस। ही एग्रीड टू पे हिम $2 पर आवर। इस तरह से वकील ने किराए के लिए $2 प्रति घंटे के हिसाब से तय कर लिया। द मैन विथ द हैक टोल्ड दैट ही हैड टू टेक मनी फ्रॉम लुटकिंस। He told the narrator about one thing. If he went to Lutkin to get money in fancy clothes, Lutkin would be suspicious and go away. उसने वकील को बताया कि अगर वे इस तरह के सुंदर कपड़ों में लुटकिन से मिलने जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो पैसा तो उसे शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा। So he offered to go into Fritz. Fritz is a name of place of a shopkeeper. उसके दुकान पर जाते हैं। He would ask for him on his behalf. और वो बताया कि आपको नहीं जाना है, मैं उसकी तलाश करूँगा जिससे कि आप पर उसको शक न हो। The narrator could keep himself out of sight. उसने बताया कि आपको उसके नज़रों के सामने नहीं आना है। The narrator felt happy that the man was so helpful for him. As the liar was in practice period, he had no good experience on how to tackle the strangers, so easily he was in hand of the delivery man, and he thought that the delivery man was very good and helping. He would let Lutkin with his help. The man told the narrator that the folk there called him Bill or Magnuson. उस आदमी ने यह भी बताया कि इस जगह पर उसे लोग बिल या मैग्नूसन के नाम से भी जानते हैं। His business was William Magnuson fancy carting and hacking.
उसने कहा कि उसका व्यवसाय विलियम मैग्नुसन फैंसी कर्टिंग एंड हैकिंग है, जबकि वो स्वयं लुटकिंस था। अब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से लायर को मूर्ख बना रहा है। He told the narrator that Lutkin played a lot of poker. उसने बताया कि लुटकिन की आदत है कि वो बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है। He was good at deceiving people. वो लोगों को धोखा देने में महारत हासिल प्राप्त किया हुआ है। He told something more about Lutkin. और तमाम सारी अन्य बातें भी लुटकिन के बारे में उस हैक ड्राइवर ने नरेटर को बताई। इस तरह से वे लोग फ्रिट्ज की दुकान पर पहुंचे। बोथ ऑफ देम वेंट इन फ्रिट्ज। बिल आस्क्ड फ्रिट्ज इफ ही हैड सीन लुटकिन। वहाँ पर जाकर के, जैसा कि पहले से ही तय था कि नरेटर को आगे नहीं आना है, तो ये बिल यानी हैक ड्राइवर स्वयं जाता है और फ्रिट्ज से पूछता है कि क्या उसने लुटकिन को देखा है। चूँकि वो स्वयं लुटकिन होता है, फ्रिट्ज ये समझ जाता है और वहाँ से वो क्या समाचार लेकर आता है। फ्रिट्ज ये देखता है कि वहाँ नरेटर कोई एक आदमी दूसरा है जो छुपा हुआ है। He replied that Lutkin had been there a little while ago. बताता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले ही लुटकिन यहाँ था। Perhaps he had gone to Gustav for a shave. शायद वो बगल की गुस्टाफ की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए गया होगा। इस तरह से दे ड्रोव टू गुस्टाफ बेकर शॉप्स। पुनः वे लोग गुस्टाफ की दुकान पर जाते हैं। बिल वेंट इनसाइड एंड इंक्वायर्ड अबाउट लुटकिन। ही वाज टोल्ड दैट दे हैड सीन लुटकिन वॉकिंग डाउन टू द मेन स्ट्रीट। बिल टोल्ड द नरेटर एंड लुटकिन हैड स्पेंट हिज क्रेडिट एट गुस्टाफ। ही हैड परहैप्स गॉन टू ग्रे फॉर ए सेल। एट ग्रे शॉप दे मिस्ड लुटकिन बाई ओनली 5 मिनट्स। जब वो ग्रे शॉप के ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अभी 5 मिनट पहले ही लुटकिन यहाँ से गया है। ही माइट हैव गॉन फॉर द पूल रूम। अब जानकारी होती है कि शायद वह पूल रूम गया होगा। देन ही वेंट आउट। वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से अभी अभी गया है। इस तरह से दे फॉलोड हिम टिल इट वॉज 1 o'clock इन सर्चिंग। इट वॉज 1 o'clock, 1 बज गए दोपहर के। इट वॉज द टाइम टू ईट समथिंग बट दे कुड नॉट मीट हिम। धीरे धीरे दोपहरी हो जाती है, खाने का समय हो जाता है, फिर भी लुटकिन की का पता नहीं लग पाता है। द नरेटर ऑफर्ड टू टेक बिल टू ए रेस्टोरेंट। नरेटर कहता है कि ठीक है, अब चलो कहीं किसी होटल में कुछ खा लिया जाए। बट बिल वांटेड टू गो होम टू हिज वाइफ। लेकिन बिल ये कहता है, यानी जो हैक ड्राइवर है ये कहता है कि नहीं, वो अपने पत्नी के पास जाएगा, वहाँ से खाना खाएगा। ही टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड पे लंच फॉर $1.5। और वो ये भी बताता है कि उसकी पत्नी मात्र $0.5 में ही लंच पैक बना देगी, जो कि सस्ता भी होगा और घर का खाना है तो अच्छा भी होगा। देन दे वुड गो टू वेड्स हिल। इसके बाद वे वेड हिल, एक पहाड़ी जगह थी जहाँ पर वो जाते हैं। दे वुड इंजॉय सीइंग व्हाइल ईटिंग। वहाँ पर वो खाना खाते हैं और वहाँ की पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेते हैं। द नरेटर पेड हिम फॉर 6 hours। इस तरह से नरेटर ने 6 घंटों के लिए किराया दिया। ही चार्ज द होल मनी टू द फर्म। उसने कहा कि वो ये पैसा अपने फर्म से कलेक्ट करेगा। एज दे सैट एट द हिल बिल टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। जब वे उस पहाड़ी पर, उस हिल पर बैठे हुए थे, बिल ने न्यू मिलियन के बारे में तमाम और जानकारियाँ दिया। ही डिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द मिनिस्टर्स वाइफ टू द बॉयज। बिल हैड ट्रेवल्ड ए लॉट ऑफ द कंट्री। ही हैड मैनी जॉब्स ऑल्सो। बिल एंड द नरेटर रिज्यूम दैट द जर्नी टू फाइंड आउट लुटकिंस। इस तरह से पुनः दोपहर के भोजन के बाद एक बार फिर लुटकिन के खोज के लिए वे तैयार होते हैं। बिल टोल्ड द नरेटर दैट ही न्यू लुटकिन्स मदर। बिल बताता है कि वह लुटकिन की माँ को जानता है। बट सी टुक हिज स्किन ऑफ। लेकिन वो बताता है कि वो एक बार उसके पास गया था, वो एक प्रकार की आतंक है और उसने
उसे इस तरह से परेशान किया कि वह शायद उसकी चमड़ी ही उतार ले। शी वॉज 9 फीट टाल एंड 4 फीट थिक। उसने लुटकिन की माँ के बारे में बताया कि वह 9 फीट लंबी है और 4 फीट मोटी है, एंड क्विक एज ए कैट, फिर भी वो एक बिल्ली के जैसे तेज है। They went to her. Bill told her who they were. इसके बाद वे लोग लुटकिन की माँ के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर भी आगे जाकर के बिल ही कहता है कि वे लोग कौन हैं। अर्थात वो लुटकिन की ही माँ होती है, लेकिन वहाँ पर जाकर लुटकिन यानी जो बिल के रूप में वकील के सामने प्रस्तुत हुआ है अपना हैक लेकर के, वो जाकर के अपनी माँ से बताता है कि वे लोग कौन हैं, यानी अपने बारे में और वकील के बारे में बताता है कि वे लोग कौन हैं। बट टोल्ड लुटकिन्स मदर वाई द नरेटर हैड कम टू मीट लुटकिन्स। इस तरह से बिल वहाँ ये भी बताता है कि ये वकील लुटकिन से मिलने के लिए क्यों आए हुए हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट द नरेटर हैड ए लीगल राइट टू सर्च द प्लेस फॉर लुटकिन। वो ये भी बताता है कि इनके पास सम्मन है जो लुटकिन को देना है। जैसे ही ये बात सुनती है लुटकिन की माँ, हियरिंग दिस द वुमन वेंट इनटू द किचन। वो किचन में जाती है। शी केम आउट विथ एन आयरन रॉड ऑफ एन ओल्ड स्टोव। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट देम। वो उन पर चिल्लाती है और हंसती है। बिल टोल्ड द नरेटर टू गेट आउट देयर। बिल बोलता है कि भागिए सर भागिए। दैट वुमन वुड मर्डर देम। They however searched the house fully, but Lutkin was not there. It was nearly time to catch the afternoon train. The day was completed. Bill drove the narrator to the station. The narrator considered returning to the New Mullion to practice law. इस तरह से नरेटर वहाँ से ट्रेन पकड़कर बिना लुटकिन का पता लगाए वापस जाने लगता है। वापस जाते समय न्यू मुलियन के बारे में उसके दिमाग में क्या छवि बनती है कि न्यू मुलियन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। ही वॉज चार्म्ड बाई एवरीथिंग दैट ही सॉ एंड मेट देयर। वो न्यू मुलियन में जो कुछ भी प्राप्त किया, जो कुछ भी देखा, उन सबसे काफ़ी प्रभावित हुआ था। ही पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ देयर बियॉन्ड द यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फील्ड। वो अपने प्रेजेंट जगह से ज़्यादा अच्छा न्यू मुलियन को पाया। ही हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ देयर। और वो सोचता है कि न्यू मुलियन में रह करके उसका जीवन बदल जाएगा। बट एवरीबॉडी इन द ऑफिस वाज अपसेट व्हेन ही रीच्ड टू द ऑफिस एंड रिपोर्टेड दैट ही हैडंट फाउंड लुटकिन। तो एवरीबॉडी वाज अपसेट। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिन्स। मीन्स लुटकिन वाज वेरी necessary for that case. He was the only eyewitness in some case. The narrator was shameful at not serving summons on Lutkins. The chief almost murdered the narrator for his failure. He scolded a lot and he was ordered back to go to New Mullion to serve the summon. This time a man who had worked with Lutkins went with him. इस बार नरेटर के साथ एक ऐसे आदमी को भी भेजा गया जो लुटकिन के साथ काम किया था, यानी लुटकिन को पहचानता था। ही वॉज टू रिकॉग्नाइज लुटकिन्स। द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मुलियन। द नरेटर सा बिल ऑन द प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ड। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, प्लेटफॉर्म से बाहर आकर के वकील ने देखा, नरेटर ने देखा कि बिल यानी जो हैक ड्राइवर था अपने हैक के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। द ओल्ड टाइग्रेस लुटकिन्स मदर वाज आल्सो देयर। वहाँ पर उसकी माँ भी थी। शी वाज टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। शी वाज नॉट क्वेरलिंग। द नरेटर पॉइंटेड टू बिल। नरेटर वहाँ जाते ही जो व्यक्ति उसके साथ गया था उससे कहा कि देखिए यही है बिल जिसने कल मेरी लुटकिन को खोजने में बहुत सहायता की। He said that he had spent a whole day with that fine fellow. The man asked him if that man had helped him find Lutkins. तब उस आदमी ने पूछा कि क्या इस
बिल ने तुम्हारी मदद की लुटकिन को खोजने में? द नरेटर रिप्लाइड दैट ही हैड। नरेटर ने कहा हाँ, इस व्यक्ति ने पूरे दिन भर लुटकिन की खोज करने में हमारी मदद की। देन द मैन टोल्ड हिम दैट मैन हिमसेल्फ वाज लुटकिन। तब उसने कहा, वाह रे बुद्धिमान, आपके सामने जो खड़ा है यही लुटकिंस है। इस तरह से द नरेटर सर्व्ड द समवन ऑन लुटकिंस। लुटकिन एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम एज इफ ही वेयर ए बॉय ऑफ 7। नरेटर ने यह महसूस किया कि उसकी माँ और वो जो बिल यानी लुटकिन थे वो दोनों इस कदर वकील पर हंसे, इस हंसी पर वकील को अपने आप को एक 7 साल का बच्चा समझना उचित लगा। दे बेग्ड हिम टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन ए नेबर्स हाउस। इस तरह से ये कहानी का रिकैपिटलाइजेशन पूरा हुआ। एक क्वेश्चन, व्हाई वाज द लायर हैप्पी टू गो टू न्यू मुलियन? लायर न्यू मुलियन जाते समय खुश क्यों था? वो वहाँ क्यों गया? व्हाई डिड ही फाइंड द साइट एट द स्टेशन एग्रीबल? स्टेशन के बाहर जब वो पहली बार पहुँचा तो वो उसे पसंद क्यों आया? द लायर वाज हैप्पी टू गो टू न्यू मुलियन एज he had to serve someone on Oliver Lutkins there. The liar found the sight at the station agreeable. It was because it was good as compared to the city life, to the dirty places. Then he had the delivery man who looked agreeable and he had a friendly manner. One more question, mostly asked by the board. What did the hack driver tell the narrator about Lutkins? Explain giving example from the text. So the hack driver was Lutkin himself, as you have come to know, but he befooled the narrator. He deceived the narrator. He told him many things about Lutkins. He means Lutkins told that Lutkin was a hard fellow to catch. It was not easy for anybody to catch Lutkin easily. He was always up to something or the other. Lutkin never paid back the money. He played poker and borrowed money from others. He could be at Fritz's shop at that time. Also, he could be at Gustav's shop for a save. Lutkin also told the narrator that he was a cheat and had cheated many people. It was difficult to find him at one place. Lutkin took the narrator to Gustav's shop, but he could not own. A customer informed him that Lutkin had been seen walking down the main street. Lutkin kept on befooling the narrator the whole day, as he himself was Lutkin. So in this way, a brief revision is completed about the lesson The Hack Driver.